चलो let's begin. So yesterday we discussed, let's know a quick recap. Yesterday we discussed about Panchayati Raj Day. Okay, so Panchayati Raj Day, uh, folks, screen visible hai na, and I'm audible, right? Yes, sir. Okay, thank you. So National Panchayati Raj Day we had discussed yesterday. Why it is celebrated on 24 April? First of all, you need to understand the Panchayati Raj Day is on 24th April. Why? Because this particular Constitutional Amendment Act, which is 73rd Constitutional Amendment Act, which brought in the Panchayati Raj institution in our political setup, okay, it was came into force in on 24 April 1993, and that is how this 24 April is celebrated as National Panchayati Raj Day. Okay, always remember this last point. The Constitution of India recognizes panchayat as institutions of self-government. Okay, so panchayats को कहा जाता है institutions of self-government. Why institutions of self-government? Because they have very much autonomy in multiple aspects of their governance. Okay, and there is no central control from above. Is that clear? So that is how we call it institution of self-government. Okay, then on the same day 24 April, our Prime Minister launched two important portals, eGram and the Swamitwa Yojana. Okay, so what eGram portal will do, it will accelerate the projects in villages from planning to completion. Okay, I had told you in yesterday's lecture that it will basically monitor and assess the progress of any project in village panchayats. Then we dealt with Swamitwa Yojana. Swamitwa Yojana is about mapping of properties, okay, and how it is significant, that also we dealt with. Okay, then we discussed about China's first Mars exploration mission, Tianwen-1. Okay, now I'm pronouncing it Tianwen. Okay, it may be pronounced any other way. So Tianwen-1 is China's first Mars exploration mission. Why first? Because even before this, China had tried a Mars mission whose name was Yinggu 1, but it has failed. Okay, and that's why it did not become a success, and we cannot call it a first mission of China. So what will be the first mission of China? It's Tianwen-1. Okay, so see, it will basically aim to complete ऑर्बिटिंग, लैंडिंग एंड रोविंग, ये सारे फंक्शन वो करेगा. ठीक है, सिर्फ ऑर्बिट नहीं होगा, लैंड भी करेगा और रोविंग भी करेगा. ओके, उस पर चलेगा भी. इट माइट कलेक्ट सम इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स फ्रॉम द मार्स. अब ऐसा करने वाला, लैंडिंग करने वाला दुनिया का सबसे पहला देश कौन सा था? इट वाज यूएसएसआर. ओके, इन 1971, which becomes the first country to carry out Mars landing with its Mars 3 lander. और मार्स का लैंडर का नाम क्या था? वो मार्स 3. किसी को याद है हमारे चंद्रयान के लैंडर का नाम क्या था? हमारे चंद्रयान विक्रम था. वेरी गुड. ठीक है, तो हमारे चंद्रयान का जो था उसका नाम विक्रम था. राइट, कोई बता सकता है विक्रम क्यों रखा गया था उसका नाम? चैट बॉक्स में बताना, अभी मैंने म्यूट कर दिया है. विक्रम क्यों रखा गया था नाम? कैन एनीवन? वेरी गुड राजपूत, वेरी गुड ऋतिक. चलो, ऑल ऑफ यू नो दिस, राइट? ग्रेट. So far countries such as India, Russia, European Union and United States, these 4 countries so far have successfully sent their missions to Mars. Okay, and with this Tianwen-1 mission, China will become the 5th country to send its mission to Mars. Okay, is that clear? And would be 3rd country to land over it. Okay, chalo. Then we yesterday discussed about the very recent news about Hong Kong. Okay, Hong Kong में क्यों इतने सारे प्रोटेस्ट चल रहे हैं इतने दिनों से? इनफैक्ट पिछले साल से चल रहा है वहाँ पे. ठीक है, because China is trying to bring in a new law
which punishes crime of secession, subversion, terrorism. Okay. Who is second means? What do you want to ask, Athang? Well, anyone wants to ask anything? चाइना के पहले वाले to land it's USA and USSR. Okay, and to send a mission to Mars, there were 4 countries: European Union, USA, USSR, and India. Okay, all these 4 countries before China had sent to their missions to Mars, and with this Tianwen 1, China will become the 5th country. Okay, we had discussed this yesterday, right? Chalo. So then national security law in हांगकांग, ठीक है। अब ये पनिश करता है कौन से क्राइम को? सेसेशन का क्राइम। सेसेशन का क्राइम मतलब क्या? फूटना। ओके, इफ यू आर नॉट लॉयल टू योर कंट्री, इफ यू आर नॉट लॉयल मींस यू आर नॉट कमिटेड, और इफ यू आर indulge in the activities which is anti national, then you will be punished. Okay, then subversion. सबवर्जन मतलब सॉवरेंटी को, तुम्हारे देश को ये नहीं मानना, ठीक है। सबवर्जन ओवरथ्रो करने की कोशिश, या फिर कोई तुम्हारे सिस्टम के खिलाफ कोई कट रचना, इसको हम सबवर्जन कहते हैं। टेररिज्म वी ऑल नो, एंड कॉल्यूजन विथ फॉरेन फोर्सेस। कॉल्यूजन विथ फॉरेन फोर्सेस मींस किसी फॉरेन फोर्सेस के साथ मिलना, ओके, उनके साथ मिलके कोई प्लान करना अगेंस्ट योर द एस्टैब्लिश सिस्टम ऑफ योर ओन कंट्री। ओके, तो ये सारी चीजें अगर कोई करता हुआ पकड़ा जाता है, सेसेशन, सबवर्जन, टेररिज्म एंड कॉल्यूजन, then that person will be punished under this national security law. अब आप देखो ये कितना ambiguous law है। अब कोई भी act which is anti government, which is anti establishment, ऐसा कोई भी action by an individual can be declared as secession or subversion or terrorism or collusion with foreign forces. Okay, it is up to the authorities. Okay, and if those authorities feel that this voice is against China, this voice is against the established system of China or the Communist Party of China, then that person can be easily tried or punished. Is that clear? And that is how it is called. It is this law is being criticized heavily all over the world. Is that clear? Now, in fact, see, USA has criticized it heavily, right? In fact, this law is so dangerous that even the people who are not citizen of Hong Kong, even they can be tried if they found to be doing this kind of act: secession, subversion, terrorism, and pollution. Is that clear? अभी यूके ने एक रिसेंट स्टेटमेंट दिया है, ठीक है, कि हम हांगकांग के सब लोगों को सिटीजनशिप दे देंगे अगर हांगकांग के लोग वहां पर खुश नहीं, या फिर इफ दे वांट टू कम दे कैन कम टू UK. And this is a big statement, a very big statement. Why UK is making such kind of statement? Because before this, Hong Kong goes into the control of China, it was under the control of UK. Okay, before 1997, as discussed yesterday. Okay, the British government in 1898 has signed an agreement with King Dynasty for leasing the islands around Hong Kong for 99 years. ओके, और हांगकांग का कंट्रोल जो है ब्रिटिश ने, वो तो 1842 में ही ले लिया था। ओके, और 1842 में ही ले लिया था आफ्टर अ फर्स्ट ओपीएम वॉर, ओके, विद द देन डायनेस्टी ऑफ चाइना, हांगकांग। ओके, देन after 1997, when this 99 years ka lease ended up, okay, the Hong Kong was returned to the Chinese control. Okay, by whom? By British. And that is why, that is the one reason that UK is saying this particular thing, that we will grant citizenship, or we will allow Hong Kong people to enter in our country. Is that clear? So there is still some UK influence in the, in the Hong Kong. Why? Because Hong Kong democracy loving people, okay, they were brought up in the kind of environment where freedom of expression, speech,
right? Democracy, it was all there, right? And now if China is interfering into their matters, those people would definitely not like this. Is that clear? And that is why, that is how, if the people of Hong Kong are protesting against this particular law, they do not want interference of China into their particular territory. Is that clear? तो ये था चाइना और हांगकांग का इश्यू, ठीक है। और दूसरी बात ये है, वन कंट्री टू पार्टी सिस्टम, टू सिस्टम, वन कंट्री टू सिस्टम्स याद रखना, ठीक है। वन कंट्री टू सिस्टम मीन्स व्हाट, इवन दो हांगकांग बिलोंग्स टू चाइना, देयर विल बी डिफरेंट सिस्टम इन हांगकांग देन दैट ऑफ इन चाइना, ओके। चाइना में जो सिस्टम है, दैट सिस्टम विल नॉट बी देयर इन हांगकांग. So even though they are unit of one country, there will be two systems. Is that clear? And US, UK, all these country wants this one country two system thing to be implemented properly. Is that clear? समझ में आ गया हांगकांग? Repeat what? Repeat which point you want me to repeat? Acha Om, you were not there in yesterday's lecture. See what has happened is, अभी हांगकांग में चल क्या रहा है? There are large scale protests in Hong Kong. Okay, and why this protest in Hong Kong? Because Hong Kong people think that China is interfering in their matters. Okay, and what kind of interference it is? Because China is bringing in such laws which law can punish the Hong Kong person in mainland China. Okay, in fact, if China wants to punish someone, it can take that person to its own country, okay, in China, mainland China, and there he can be tried and punished. And that is how people are thinking this is interference, okay, by China, and that's why people are protesting against this law. Is that clear? अब ये लॉ क्या बोलता है? अब ये लॉ क्या बोलता है कि जो भी लोग सेसेशन के एक्ट में पकड़े जाएंगे, या मैंने सेसेशन, सबवर्जन, टेररिज्म, ये सारे एक्ट बताए आपको कि क्या क्या उसका मीनिंग होता है, ठीक है। अगर इनके अंडर अगर कोई पकड़ा जा रहा है तो ही कैन बी ट्राइड एंड पनिश. ट्राइड एंड पनिश मतलब उस पर मुकदमा चलेगा और उसको पनिशमेंट मिलेगी, ओके। तो वो मुकदमा कभी भी चल सकता है, ठीक है। मतलब ये है इसका कि वो लोग या तो हांगकांग में उन पर मुकदमा चल के उनको सजा दी जाएगी, या फिर चाइना में भी लेकर जाकर सजा दी जाएगी, ओके। और ये वहां के लोगों को ये लॉ पसंद नहीं है, उनको लग रहा है कि ये हमारा जो सेटअप था इतने सालों से, डेमोक्रेटिक सेटअप, उसमें इंटरफेरेंस है। क्योंकि चाइना, आप देखोगे हांगकांग में डेमोक्रेसी है, ठीक है। भले ही हांगकांग चाइना के कंट्रोल में आता है, बट हांगकांग में डेमोक्रेसी है, ओके फाइन। हांगकांग चाइना के कंट्रोल में आने से पहले टिल 1997 ब्रिटिश के कंट्रोल में था, ठीक है। 1997 के बाद इसको चाइना के कंट्रोल में दिया गया था, और जब इसको चाइना के कंट्रोल में दिया जा रहा था, ब्रिटिश और चाइना के बीच में ये सहमति हुई थी कि देयर विल बी वन कंट्री टू सिस्टम्स, ओके। भले ये चाइना के अंडर जा रहा है, मगर इसमें सिस्टम डेमोक्रेटिक रहेगा. इज दैट क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं. यस, ओके फाइन. मैप में अगर देखोगे तो यहाँ पे हांगकांग है, ये दिख रहा है आपको यहाँ पे. यहाँ पे छोटे से काफी छोटे छोटे आइलैंड्स भी है हांगकांग के आसपास, ओके. तो ये है हांगकांग. So Hong Kong is not yet a completely yes, it's not. Hong Kong is not an independent country as such. Okay, Hong Kong is a special territory of China. So one cannot say Hong Kong is a independent, completely independent country. Okay, it's a special territory of China. Ayush, you were present in yesterday's lecture. Now, I had given you a slight comparison between Hong Kong and Jammu and Kashmir. Okay, like Jammu and Kashmir is part of India, but it was given special status. Okay, they were governed by themselves. That similar way Hong Kong was given a special status. There was different system, but it was all part of China only. Okay, so it's not a completely independent country. Is that clear? Yes.
Then in today's lecture, the next news is about Iran's first successful military satellite. Okay, so Iran has recently launched a first military satellite, and its name is Noor. Okay, if you see Noor ka meaning, most of you have already known this. Noor means रोशनी, ठीक है, light, तेज. Okay, glaring face. So Noor इसका नाम है किसका? This military satellite का, and it is launched by whom? Iran's Islamic Revolution Guard Corps, IRGC. Very important point. Okay, IRGC, you must be aware of IRGC because it is frequently in news from last couple of months. Okay, why? I will tell you a story today. Okay, and that is how you will understand this IRGC क्या है ये? Islamic Revolution Guard Corps. See, the satellite का name तो बता दिया मैंने. The launch of military satellite by Iran has increased tension between US and Iran. देखो, US और ईरान का दुश्मनी काफी पुराना है. ओके, और आज हम इस पर थोड़ी सी बात करेंगे कि व्हाट हैज हैपेंड एंड व्हाट्स द केस बिटवीन ईरान एंड यूएसए. ओके, ताकि आपको इसमें के जितने भी फैक्ट्स है वो प्रॉपर पता चले, एक आपको लिंक रहे आपके पास, और आपको सवाल अगर क्वेश्चन आता है इस इंटरनेशनल इवेंट के ऊपर कोई, तो आप प्रॉपरली दे पाओगे. देखो, ये एक इमेज आपके सामने, सबको विजिबल है ये इमेज, राइट? सर, यूएस ईरान का दुश्मन क्यों है? दैट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन. ओके, सो आई विल टेल यू दैट क्या है वो, क्यों है. ठीक है, वेल, यूएस ईरान का दुश्मनी जो है वो वैसे पुरानी है. मतलब देखो, 1979 में ऐसा हुआ था एक बार. 1979 तक क्या है ना, ईरान में एक पपेट गवर्नमेंट था यूएसए का. ठीक है, ईरान में एक पपेट गवर्नमेंट था यूएसए का. ओके, मोनार्की थी. अब इस्लामिक रिवॉल्यूशन हुआ था वहां पे. ठीक है, और उसके बाद जो है इस पपेट गवर्नमेंट को, इस मोनार्की को ओवरथ्रो कर दिया था. इसको उखाड़ फेंका था वहां के लोगों ने उस रिवॉल्यूशन में. ठीक है, और तभी से ईरान और अमेरिका के बीच में रिश्ते खराब होने शुरू हो गए थे. तो ये सबसे इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट था 1979, याद रखना. ठीक है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो मोनार्की थी वो अमेरिका की पपेट मोनार्की थी. ठीक है, उनके इशारों पे चलने वाले. मगर उसके बाद जब ये ओवरथ्रो हो गई, तब यहाँ पे जो गवर्नमेंट आई, it was completely in contradiction with what was there earlier. Okay, and that is how the relations between Iran and USA started deteriorating. Is that clear? तो ये है, मतलब ठीक है. अब तुम इतना पूछे, हमें जाने की जरूरत नहीं, वैसे आपने पूछा इसलिए मैंने बता दिया. देखो, ईरान न्यूक्लियर डील हुआ था ओबामा के टाइम. ओके, जब बराक ओबामा प्रेसिडेंट थे तब ईरान न्यूक्लियर डील हुआ था, राइट? ये याद रखना. गाइस, पहले सुन लो मेरी पूरी स्टोरी, फिर देन वी कैन डिस्कस ऑल दिस पॉइंट्स. ओके, सो न्यूक्लियर डील हुआ था. सो वेस्टर्न कंट्रीज और यूएसए को लगता था कि ईरान जो है अपने न्यूक्लियर वेपन्स को बिल्डअप कर रहा है. ठीक है, और इसीलिए ईरान पर सैंक्शंस लगा दिए थे उन्होंने. ओके, इकोनॉमिक सैंक्शंस ईरान पे लगा दिए थे. अब ईरान की इकोनॉमी जो है इन सैंक्शंस की वजह से काफी हिट हुई थी. ठीक है, सैंक्शंस जब लगते हैं किसी कंट्री पर, जो वेस्टर्न कंट्रीज, अमेरिका किसी कंट्री पर सैंक्शंस लगाता है, तो उस कंट्री को दुनिया के बाकी देशों के साथ ट्रेड करना मुश्किल हो जाता है. ठीक है, क्योंकि उन पर सैंक्शंस होते हैं और इसीलिए मोस्ट ऑफ द कंट्रीज उनसे ट्रेड नहीं करती. तो ये एक थिंग था, और इसीलिए इस सैंक्शंस की वजह से इकोनॉमी काफी हिट हो रही थी किसकी? ईरान की. और फाइनली दोनों देश के दोनों देश के बीच में, अरे सैंक्शंस मैंने बताया ना, सैंक्शंस मतलब क्या? प्रतिबंध. सैंक्शंस मतलब प्रतिबंध, मतलब बहिष्कार. इन शॉर्ट अपनी लैंग्वेज में बोलेंगे तो, ठीक है, बहिष्कार कर दिया था इस देश का. इसका मतलब अगर बहिष्कार करेंगे तो बाकी देश इनके साथ ट्रेड नहीं करेंगे, इन पर प्रतिबंध रहेंगे. ठीक है, इज दैट क्लियर? हाँ, तो वो अगर कोई कंट्री इंटरनेशनल रूल फॉलो नहीं करता है, इंटरनेशनल ट्रीटीज को फॉलो नहीं करता है, तो उन कंट्रीज पर सैंक्शंस लगते हैं. ठीक है, ये सैंक्शंस आइदर यूनाइटेड नेशन लगा सकता है, या फिर बाकी वेस्टर्न कंट्री जैसे यूएसए, जो पावरफुल कंट्रीज है दुनिया की, वो भी इन सैंक्शंस को लगा सकते हैं किसी भी कंट्रीज पर. जैसे नॉर्थ कोरिया पर भी काफी सैंक्शंस है. ठीक है, क्योंकि नॉर्थ कोरिया इंटरनेशनल लॉस को ज्यादातर अबाइड नहीं करता. ठीक है, और अपने न्यूक्लियर वेपन्स को बनाते रहता है.
और इसीलिए इस कंट्री को हिट होना चाहिए इकोनॉमिकली, इसीलिए इसका बाइकआउट किया जाता है। ठीक है, बाकी दो देश है इससे कोई व्यवहार नहीं करते, इससे कोई संबंध नहीं रखते, इसको हम बोलते हैं सैंक्शंस लगाना। इज दैट क्लियर? तो ईरान पर सैंक्शंस थे। ठीक है, अब दोनों के अप्रीहेंशंस थे। वेस्टर्न कंट्रीज को लगता था ईरान न्यूक्लियर वेपन अपना न्यूक्लियर वेपन का प्रोग्राम काफी तेजी से आगे बढ़ा रहा है, और इसीलिए ईरान पे सैंक्शंस लगा दिए थे। और फाइनली दोनों के बीच में एक डील हुआ था, ठीक है, अमेरिका और बाकी वेस्टर्न कंट्रीज के बीच में और ईरान के बीच में, कि बाबा ठीक है, ईरान अपने न्यूक्लियर वेपन को, अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को खत्म करेगा या कम करेगा, उसके बदले में हम ईरान के ऊपर लगाए हुए सैंक्शंस को हटाएंगे। ठीक है, तो ये था ईरान न्यूक्लियर डील। ओके, मगर डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद डोनाल्ड ट्रंप को लगता था कि ईरान न्यूक्लियर डील फेयर नहीं है, और ईरान अभी भी अपने न्यूक्लियर वेपन को, अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को बढ़ा रहा है। ठीक है, मगर जो इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी है, ठीक है, एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, उसने कहा था कि ईरान ऐसा कुछ नहीं कर रहा है, ईरान ने अपने न्यूक्लियर वेपन प्रोग्राम को कंट्रोल में रखा है और वो नहीं बना रहा है। मगर उसके बावजूद भी, उस पर्टिकुलर एजेंसी के फाइंडिंग से बावजूद भी, डोनाल्ड ट्रंप ने इस न्यूक्लियर डील को विड्रॉ कर दिया था। ठीक है, इस न्यूक्लियर डील से बाहर निकल गया था डोनाल्ड ट्रंप। अब मेन टेंशन यहाँ से शुरू हुए थे, जब ईरान न्यूक्लियर डील कैंसिल हो गई थी। ठीक है, कब? मई 8 2018 में। ठीक है, 2014-15 में ये ईरान न्यूक्लियर डील हुई थी। ठीक है, मगर 4-5 साल बाद 2018 में अंडर प्रेसिडेंसी ऑफ डोनाल्ड ट्रंप दिस पर्टिकुलर डील वाज कैंसिल्ड, और यहीं से शुरू हुए प्रॉब्लम्स बढ़ना अमेरिका और ईरान के बीच में। ठीक है, क्योंकि इस ईरान न्यूक्लियर डील से बाहर निकलने के बाद अमेरिका ने फिर से ईरान पर सैंक्शंस लगा दिए थे, जो कि ईरान को कतई मंजूर नहीं थे। ठीक है, और फिर शुरू होता है ये सारा फिर से खेल। अब इस खेल में हुआ क्या क्या है, मैं आपको सारे इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स बताता हूँ जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब ये सारा डील के बाहर निकलने के बाद अमेरिका ने क्या किया, ईरान का जो रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स क्रॉप्स है, ठीक है, जिसने ये सैटेलाइट लॉन्च किया है, जो अभी हमने न्यूज में देखा था, ये देखो, ये जो है, किसने सैटेलाइट लॉन्च किया है? इस्लामिक रिवॉल्यूशन गार्ड कॉर्प्स। ठीक है, आईआरजीसी। तो ये जो है, ये क्या है आईआरजीसी? सी, ईरान की अपनी एक मिलिट्री है। ठीक है, ईरान की अपनी एक डोमेस्टिक मिलिट्री है जो ईरान के अपने बॉर्डर्स को, विद इन इट्स बॉर्डर सर्व करती है। ठीक है, मगर इसी के साथ साथ ईरान की अपनी खुद की एक अलग मिलिट्री है जो ईरान के आउटसाइड के ऑपरेशंस को देखती है। ठीक है, मतलब ईरान के बेसिकली दो मिलिट्री ग्रुप्स हैं। एक ऐसा ग्रुप है जो ईरान के बॉर्डर्स और ईरान के बीच वाले मामले देखती है। ठीक है, और एक ऐसा ग्रुप है जो ईरान ईरान के बाहर के मामले, जो है ईरान के जितने भी एंगेजमेंट्स है बाकी कंट्रीज में, उसको देखती है। और ये जो बाहर वाली ऑर्गेनाइजेशन है वो है आईआरजीसी। ठीक है, इस्लामिक रिवॉल्यूशन गार्ड कॉर्प्स। ओके, ये इनका एक्सटर्नल एजेंसी है, एक्सटर्नल नॉट इंटरनल। ओके, जो इनके एक्सटर्नल ऑपरेशंस होते हैं उसको वो देखती है। राइट, अब इराक में अगर वॉर चल रहा है, इराक में जो प्रॉक्सी वॉर चल रहा है ईरान और इराक में भी काफी इश्यूज चल रहे हैं। इराक में भी यूएसए भी है, इराक में प्रेजेंट, ईरान भी प्रेजेंट है। तो यूएसए के खिलाफ जो ईरान में प्रोटेस्ट होते हैं या लड़ाइयाँ होती है, उसको हेल्प करता है ईरान इनडायरेक्टली विद दिस आईआरजीसी। ये आईआरजीसी उसका काम रखेगा। अब देखो, हमने यमन और सऊदी अरेबिया का इशू देखा था, उसमें भी हाउदी रेबल्स देखा था हमने, हाउदी रेबल्स और सऊदी अरेबिया के बीच में लड़ाई चल रही है। तो इस हाउदी रेबल्स को मैंने बताया था कि सब क्लेम करते हैं कि ईरान सपोर्ट कर रहा है। अब ईरान अगर ये अपने देश के बाहर के ऑपरेशन में किसी को सपोर्ट कर रहा है, तो उसका देखभाल कौन करेगा? आईआरजीसी। क्यों? क्योंकि आईआरजीसी ईरान के बाहर के मामलों को देखता है। इज दैट क्लियर? समझ में आ गया आईआरजीसी क्या है? हाँ, सो आईआरजीसी जो है इनका एक मिलिट्री ग्रुप है अलग से। ठीक है, यस। इस मिलिट्री ग्रुप को क्या किया था फिर डोनाल्ड ट्रंप ने? 2019 में एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन घोषित कर दिया। ठीक है, यूनाइटेड स्टेट्स डिक्लेयर ईरान रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स कॉर्प्स एज अ टेररिस्ट ग्रुप। ठीक है, अब अमेरिका ने अगर इसको टेररिस्ट ग्रुप घोषित कर दिया है, तो अमेरिका के पास वो अथॉरिटी आ जाती है कि वो इस पर अटैक करे कभी भी और इसके लोगों को मारे। ठीक है, तो ये एक बात याद रखना। ठीक है, अब इसकी एक कुछ फोर्स थी, कुछ फोर्स, ये याद रखो, विच ऑपरेट्स इन अब्रॉड इज आल्सो पुट ऑन ब्लैक लिस्ट। आईआरजीसी जो है, इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड, इसका एक इंटेलिजेंस एजेंसी है जिसका नाम है द कुद्स।
ठीक है, जैसे इंडिया का रॉ है ना, वैसे ये रिवॉल्यूशनरी गार्ड का एक इंटेलिजेंस, एक्सटर्नल इंटेलिजेंस एजेंसी है जिसका नाम है कुड्स। और इस कुड्स फोर्स का जो मेन चीफ था जनरल सोलेमानी, उस सोलेमानी को रिसेंटली अमेरिका ने किल किया है, ठीक है, मारा है। अब वो स्टोरी पे हम आएंगे, मगर उससे पहले मैं आता हूँ उसके, अभी यहाँ तक तो क्लियर है ना आपको पिक्चर कि क्या क्या मामला है, ठीक है। ये IRGC और कुछ ये याद रखना, ठीक है, मैं ये इमेज भेज दूंगा आपको। फिर इसके बाद मामले शुरू हो गए, ठीक है। अमेरिका के कुछ शिप्स पे या वेस्टर्न कंट्रीज के कुछ शिप पे गल्फ ऑफ पर्शियन गल्फ में अटैक हुए, ठीक है। ऐसा ऐसा बोला जाता है कि वो अटैक ईरान ने किए थे, ठीक है। देन ईरान ने अमेरिका का एक ड्रोन भी शूट डाउन कर दिया था उस एरिया में, उस रीजन में। बाद में अमेरिका ने भी ईरान के ड्रोन्स को शूट डाउन कर दिया था, और टेंशन काफी बढ़ने लगे थे उस रीजन में, पर्शियन गल्फ रीजन में, ठीक है। और ऐसा लग रहा था कि अमेरिका और ईरान में अभी वॉर हो ही जाएगा, मगर लास्ट मोमेंट पर वो वॉर रुक गया, हुआ नहीं, ठीक है। अब देखो, और इसके बाद फाइनली हुआ क्या, अभी अगर हम देखें इसमें, ये देखो, ठीक है। December 29 में फाइनली यूएस कैरीज आउट एयर स्ट्राइक अगेंस्ट बेसिस ऑफ प्रो ईरान ग्रुप्स इन इराक, ठीक है। अब इराक का आपको पता है, इराक वैसे भी डिस्टेबल कंट्री है, सद्दाम हुसैन के जाने के बाद इराक पर कंट्रोल ज्यादातर यूएस का आ गया था, और यूएस अभी भी इराक में अपने मिलिट्री बेसिस को बनाए रखा है, ठीक है। अब यूएस में, इराक में यूएस के तो मिलिट्री बेसिस है ही है, उसी के साथ साथ ईरान का भी कुछ इन्फ्लुएंस है, ठीक है। वहां का जो इराक का जो मिलिशिया है, वहां के जो कुछ मिलिटेंट्स है जो अमेरिका के खिलाफ वहां पे लड़ रहे हैं, उनको ईरान सपोर्ट करता है वहां पे इनडायरेक्टली, ठीक है, वाया दिस कुड्स फोर्स, ठीक है, वाया दिस कुड्स फोर्सेस। इज दैट क्लियर, ठीक है। और इस कुड्स फोर्सेस ने क्या किया था, इराक का जो मिलिशिया है उसके साथ मिलकर वहां पे अमेरिकन एम्बेसी जो थी इराक में, उसको स्टॉर्म करते हैं, मतलब उसको उन्होंने वहां पे अटैक किया था, वहां पे अमेरिकन एम्बेसी को इन इराक, ठीक है। किसने, प्रो ईरान प्रोटेस्टर्स ने। अब ये चीज होने के बाद अमेरिका और चिड़ गया, और अमेरिका ने फिर, ये 31 दिसंबर को हुआ था, 3 जनवरी को अमेरिका ने एक एयर स्ट्राइक में जो कुछ फोर्सेस का चीफ था, ठीक है, जनरल कासिम सोलेमानी, उसको डायरेक्टली मार दिया, ठीक है। ये हुआ था ड्रोन अटैक से, और ये काफी बड़ी न्यूज बनी थी कि जनरल द हिंदू में भी ये फ्रंट पेज पे था, ठीक है, कि जनरल कासिम सोलेमानी को यूनाइटेड स्टेट्स ने उड़ा दिया है। और इसके बाद टेंशंस और बढ़ गए थे, क्योंकि ये सबसे मोस्ट पावरफुल पर्सन था उनके कमांडर, उनके मिलिट्री का, जनरल कासिम सोलेमानी। और अयातुल्लाह अल खमेनी जो है सुप्रीम लीडर ऑफ ईरान, उसने कहा था कि अब इसका हम बदला जरूर लेंगे बात, ठीक है। और ये लेने के बाद उन्होंने फिर कुछ अमेरिका के जो ईरान में बेसिस है उनको उड़ाया भी था, वगैरह वगैरह। तो ये सब काफी लंबा चला, और अभी तक ये मैटर चल ही रहा है, ठीक है, ये सॉल्व नहीं हुआ है। ईरान और अमेरिका के बीच में ये टेंशन चल ही रहे। और अब ये रिसेंट डेवलपमेंट क्या हुई है इसमें, रिसेंट डेवलपमेंट क्या है इसमें, कि अब ईरान ने अपना एक मिलिट्री सैटेलाइट लॉन्च किया है, ठीक है, जिसकी वजह से ये टेंशंस और बढ़ सकते हैं। इज दैट क्लियर? चलो फास्ट, लास्ट 1 मिनट में आपको किसी को कुछ अगर डाउट होगा इसमें पूरे स्टोरी में तो पूछ सकते हो प्लीज। आई होप इट्स क्लियर, राइट? पूछो फास्ट, जो भी पूछना है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सर एक बार और, अरे यार नेटवर्क चला गया था तुम्हारा, मगर अब अपना टाइम भी तो खत्म हो रहा है ना, इतना लंबा स्टोरी फिर से एक बार। ठीक है, कल कल जब हम हमारे लेक्चर का रिवीजन लेंगे ना, तब मैं फिर से एक बार शॉर्टली बता दूंगा, डोंट वरी, ठीक है। अभी कोई आपका अगर स्मॉल क्वेश्चन हो जो आप पूछना चाहो 1 मिनट के टाइम में, तो आप पूछ सकते हो, कि 1 मिनट ही बचा है। अगर सैंक्शंस लगाए तो बाकी कंट्री को ट्रेड करने में क्यों परेशानी होती है? दैट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन, ठीक है। देखो अमेरिका का डोमिनेंस इतना है ना दुनिया के पॉलिटिक्स पर,
दुनिया के जियो पॉलिटिक्स पर, कि कोई भी कंट्री, अगर अमेरिका किसी कंट्री पर सैंक्शंस लगाता है तो कोई भी दूसरी कंट्री उस कंट्री के साथ ट्रेड करने से डरती है, क्योंकि उसको डर लगता है कि अमेरिका के साथ हमारे रिलेशन बिगड़ ना जाए और अमेरिका हम पर भी सैंक्शंस ना लगा दे। ठीक है, इतना डोमिनेंस है अमेरिका का वर्ल्ड पॉलिटिक्स पे, समझ रहे हो। इसीलिए बाकी कंट्रीज को भी परेशानी होती है। जैसे अभी ईरान और इंडिया के रिलेशन तो अच्छे थे, इंडिया और ईरान के रिलेशन में कोई इशू नहीं था, मगर अमेरिका का ईरान पर सैंक्शंस लगाने की वजह से इंडिया को भी ईरान से ऑयल खरीदना बंद करना पड़ा, समझ रहे हो, क्योंकि वो प्रेशर था इंडिया, इट इज इंटरनेशनल प्रेशर होता है वो अमेरिका के साथ बेयर करना बोले तो। और हमारे अमेरिका के साथ ज्यादा अच्छे रिलेशन है और सिक्योरिटी पर्पज से हम अमेरिका पे काफी डिपेंडेंट भी है, इसीलिए काफी कंट्रीज को ये बात माननी पड़ती है, समझ रहे हो, अगर किसी देश पर अमेरिका सैंक्शंस लगा रहा है तो। यस, एंड दैट इज व्हाई इंडिया आल्सो कैंसल ऑयल डील्स विद ईरान। अमेरिका किसी को भी टेररिस्ट डिक्लेयर कर सकता है क्या? अब देखो, डिपेंड करता है सिचुएशन क्या है, कॉन्टेक्स्ट क्या है, बंदा कौन है, किस कंट्री से है, उसमें उसके क्या इश्यूज थे। एकदम भी ब्लैंकेटली किसी को भी डिक्लेयर नहीं कर सकते, ठीक है, इट ऑल डिपेंड्स। डज इंडिया हैव मिलिट्री सैटेलाइट एंड नेम? वेल, इंडिया डू नॉट हैव अ मिलिट्री सैटेलाइट एज सच, बट इंडिया के कुछ सैटेलाइट है जो मिलिट्री पर्पस के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं सर, ठीक है। यस, वेरी गुड, एसेट। तो ये एसेट क्या करेगा, ये एक्चुअली मिसाइल है, इट कैन शूट डाउन एनिमी सैटेलाइट्स, ठीक है। what it does is it can shoot down enemy satellites. सर एक क्वेश्चन पूछिए।